Fine. So आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट दिख रहा है? वर्ड दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है? वर्ड दोनों दिख रहा है? वर्ड दिख रहा है, वर्ड वर्ड दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है। वर्ड दिख न्यू शेयर करता हूँ, उसकी जरूरत नहीं। ओके, या आर वी ऑन पेज नंबर 40? Yes, yes sir. Yeah. Okay, so we'll start off. So this topic AC voltage controller is not new because you already have performed an experiment in the lab, right? So do you remember that kit in which in the lower half of the kit we had two SCRs connected back to back, right? Yes sir. Okay, fine. So what I will do is that the notes are in front of all of you, and we will just go and read through, and if I feel that there is something to be explained, I will pause, otherwise I'll go. Okay, so the topic is single phase full wave AC voltage controller with R load. Fine. So if you remember our first introduction PPT, we had told that what are the different systems named as when they convert energies between AC and DC. For example, AC to DC is called as converter, DC to DC is called as chopper. Similarly, we had told that whenever a system converts AC into AC at the same frequency, it is called as AC voltage controller. Okay, and when there is a conversion from AC to AC at a different frequency, then it gets the name as resonant converter. Okay, so please remember one thing, that the system which we are going to discuss today will take a single phase 230 volt RMS 50 hertz as an input, and will give us at the output single phase 50 hertz signal. But then what will be the RMS value will be decided by how much firing angle we keep. So in this system, the firing angle, as in converters, is varied from 0 degree to 180 degrees. And when this happens, then the RMS content at the output will vary from 230 volt to 0 volts. Is it clear? Yes sir. Yeah, so going ahead, we have already studied a DC chopper system wherein a pure DC voltage is given as an input and it is vertically chopped. Vertically chopped मतलब है time scale के ऊपर. Okay, 0 to T on waveform exists at V volts V in, and T on to T doesn't exist. Vertically chopped to give a switching waveform with certain T on, T off and T, giving a certain duty cycle D and frequency, thereby achieving a certain value of VLAVG, right? So next point is आपका ऑडियो कट हुआ था अभी for okay. like so can कहाँ you तक just सुना repeat it? आपने? कहाँ तक सुना आपने? सर वो टी-ऑन तक आपने बोला, उसके बाद पूरा कट हो Yeah, गया. so यहाँ पे हमने बोला कि DC chopper, it chops the V in vertically, that is on a time scale, giving us a on time, off time, a time period, and hence a duty cycle D, thereby achieving a certain value of VLAVG. Correct? Oh, clear till now? Yeah, okay. Okay, fine. So just Yes, as sir. in chopper, we are varying the duty cycle from 0 to 1. The output voltage, it varies from 0 to V in, because VLAVG is equal to D into V in. So yeah. So here we have said, just like a DC chopper is fixed DC input to variable average output system, there exists another system which takes a fixed AC RMS input and gives a variable RMS output by chopping equal portions of both half cycles. Are you able to visualize what I'm speaking? Hello? Yes sir. Yes, sir. Okay, fine. So AC voltage controller is also called as an AC chopper. Why AC chopper? It will chop the input AC and give us selected portions at the output. Is it clear? Hence it is also known as AC chopper. Is it clear? Yes, Yeah. sir. So in this system, unlike a DC chopper, the waveforms are chopped both horizontally and vertically. Vertically means on time scale. That is, there will be no output from 0 to alpha, and also there is no output from pi to pi plus alpha. Is it okay? So vertically on time scale there is chopping,
And also when alpha is not equal to 0 or greater than 0, the amplitude will also be chopped. Is it okay? Yeah. So it is also known by different names such as AC regulator and AC voltage controller, right? तो ये जो टॉपिक है AC voltage controller, उसके और दो नाम आते हैं. उसको AC chopper भी बोलते हैं, AC regulator भी बोलते हैं. Okay. Unlike full wave control rectifiers, which convert pure AC, that is bidirectional waveform, into unidirectional waveform, AC regulator maintains the bidirectional nature of AC input. Is it clear? So we refer to figure number 1. Are you able to see figure number 1? Yes, sir. Yes, sir. तो फिगर नंबर 1 में देखा आपने कि लेफ्ट साइड में हमने प्योर एसी इनपुट दिया है, और जब ये इनपुट जब कन्वर्टर्स को देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट कैसा आता है. इट इज यूनिडायरेक्शनल. देखा? तो Yes, sir. पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो पल्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पल्स ऊपर होता है, राइट? या तो ऊपर जो लिखा हुआ है एसी रेगुलेटर मेंटेन बायडायरेक्शनल नेचर, तो क्या हो सकता है एसी रेगुलेटर का आउटपुट? ये जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसमें जो पल्स है पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई, उसका हमने मिरर वो भी इमेज लेना negative पड़ेगा. देन इट विल बिकम बायडायरेक्शनल. इज इट Yes, ओके? sir. या. Yes, It sir. employs the similar concept of phase angle control, PAC, और firing angle control. Okay. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी को कंट्रोल करने के 3 मेथड्स बताए गए हैं. एक होता है पैक, दूसरा EAC होता है, एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल. तब ध्यान से देखेंगे फिगर नंबर 1 में आप देखेंगे कि वेवफॉर्म जो है 0 के बाद चालू होता है और पाई पे खत्म हो जाता है. इज इट ओके? इसको बोलते हैं फेज एंगल, राइट? इज इट क्लियर? एवरीबॉडी इज एबल टू हियर? Yes, Yes, sir. Yeah. So Yes. unlike this thing, if I start the output at 0 but I end it before pi, it becomes extinction angle control, EAC. ये वाइवा में आएगा, मैंने क्वेश्चन डाला है वो. ओके. So in extinction angle control, the waveform starts at 0 but must end before pi. In phase angle control, it must start after 0 but end at pi. Is it okay? Yes, sir. या और एक थर्ड टाइप होता है, उसको PWM बोलते हैं. लेकिन दिस PWM इज लिटिल डिफरेंट देन PWM व्हाट यू हैव स्टडीड इन माइक्रो कंट्रोलर्स. In PWM concept, the waveform will start after 0 and it will end before pi. That is called as PWM. तो आप खान चंदानी की किताब में रिफर करेंगे तो PF कंट्रोल टेक्निक्स में मेंशन किया है उसने. ओके. सो नाउ विल गो अहेड. I hope that everything is clear till now. Any questions till now, or it's okay? No, sir. Fine. So it's okay, sir. Yeah. In order to vary the RMS content of input AC signal, so in our case it is 230 volt. Two unidirectional power devices are connected in anti-parallel arrangement. Okay. So a classic example of unidirectional device is an SCR, right? Because it is like a controllable diode. So just like diodes allow current to flow from anode to cathode, SCR also allows current to flow from anode to cathode. So it is called as unidirectional device. Is it okay? Are connected in anti-parallel arrangement between AC source and load as shown below. Okay, so this is our circuit diagram. Are you able to see this figure number 2? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here we see as mentioned before, so T1 and T2 are SCRs. So they are two unidirectional devices which are connected in anti-parallel. Why anti-parallel? Because they are anode of first and cathode of second, while the cathode of first and anode of second are connected. If it was parallel, then we have to connect anode to anode and cathode to cathode. So it's called as anti-parallel arrangement. It is important to note that since input is AC, using SCRs in anti-parallel would keep the circuit simple due to possibility of natural commutation. Is it okay? Hello? Is everybody able to hear me? Sir, sir, आ गए sir. सर, आ गए सर. Yeah, Okay, okay. I'm back. Okay. So yeah, I'm able to hear some of you. Okay, I will share screen. Are you able to see? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. We'll go ahead. So we see here that there are SCRs, T1 and T2 are connected in anti-parallel arrangement.
And it is said that why SCRs are chosen, because I could have used power MOSFET, power BJT, IGBT as a switch, right? But the problem is that all these devices you need to switch them off. They cannot be switched off from the source side, right? So if the SCRs are used, whenever negative half cycle will start at VS, T1 will get reverse bias, automatically it will get commutated. And when positive half cycle starts, T2 will anyways remain off because it is reverse bias. Is it okay? Yes, sir. Yeah, and we see that T1 is fired at alpha and T2 is fired at pi plus alpha. Okay, moving ahead. So AC source VS now drives a R load through anti-parallel SCR combination formed by two SCRs T1 and T2, which are fired at alpha and pi plus alpha respectively using suitable control circuit. Okay, so suitable control in the exam also, in this circuit diagram, this is sufficient. Suitable control circuit means either they will use UJT triggering, they will use a 1:1, 1:1 transformer. Is it okay? Yes, sir. Yeah. So now the circuit is fairly simple here. T1 will control the positive half cycle, that is from 0 to pi. That time T2 will remain off. Negative half cycle, that is from pi to 2 pi, will be controlled by T2. At that time T1 will remain off. Just okay. Circuit analysis. As in converters, our duration of analysis is one complete cycle of input, that is 0 to 2 pi, comprising of two half cycles. Positive half cycle 0 to pi, negative from pi to 2 pi. Okay. This is a repetition because we have done this thing in converters, full, semi, everywhere we have done. Are all of you on page number 3 or 42? Yes, sir. Okay. Yes, very simple. Interval 1, 0 to pi. So 0 to pi, T1 will be forward bias. So T1 is forward bias, but it remains blocked till omega t equal to alpha. We already told that there is no point keeping alpha equal to 0 because that becomes a diode. So the range of alpha is always greater than 0 and less than equal to pi. Always remember this thing. So T1 is forward bias, T2 is reverse bias. So it is blocked and open circuit, right? You see the current flow, how it flows. So in the source side, L is positive with respect to N. T1 is conducting, and we are assuming that T1 is ideal switch, so it is not offering any drop. Okay, so do you see that once the SCR T1 is fired at alpha, the source appears across load. Is it okay? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So from 0 to pi, from alpha to pi. So 0 to alpha, firing was not applied. T1 cannot fire and T2 is reverse bias. So it becomes open circuit. So output voltage is 0. So we see here current is flowing from L to N, that is in the R flowing from top to bottom. So VL is Vm sin omega t, positive half cycle. Okay, so positive half cycle which exists from alpha to pi will appear at the output. So figure number 3 says this, assuming T1 as ideal switch, VA equal to 0. VL is Vm sin omega. Yeah, so we are back. Yes, sir. Okay, again I'll share. Everybody is on this page now? Yes, sir. Okay, so interval number 2, that is pi to 2 pi. T1 is reverse biased, blocked, open circuit. Okay, T2 is forward biased. You see the diagram changes now. So T2 acts as closed switch. Now you see here on the source side, it is L is negative with respect to N. And you know that current flows from positive to negative. So now the current flow is like this. It will start from N, go to R through T2 and L. Okay, so initially the current flow was L, T1, R and N. Now the current flow is N, R, T2 and L. Is it okay? So now you see that through the load, the current direction has reversed. Is it not? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. VL, yeah, so VL is again Vm sin omega t, but I have written it is negative half cycle. Okay, hence the relevant waveforms for above circuit operation are as shown below. Is it clear? Are you on next page? Figure number 5 में Yes, आप लोग? Yes, sir. Okay, figure number 5. So first waveform is input, pure sine wave 0 to 2 pi. VL, you see that output exists from alpha to pi according to Vm sin omega t. Now the waveform from pi plus alpha to 2 pi exists again Vm sin omega, but it is negative half cycle. Is it clear? So this is source voltage Vs, load voltage VL,
and we have the IL waveform, which is nothing but it is VL by R. You see here nature remains the same, only it is scaled down. We see here that the VL waveform peaks at pi by 2 as Vm. So the peak of VL is Vm plus Vm minus Vm, and the load current peaks at plus Vm by R and minus Vm by R. Is it clear till now? तो नेटवर्क Yeah. बहुत स्लो है अभी. Yeah. Everybody is there? Yes, sir. Okay. Okay. So this will keep happening. We have to just neglect. Okay. So now we are in the expression for VLRMS. Everybody is on the same page. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. So just like we found the expression for VLAVG, VLRMS for semi and full also, it's same thing. Okay. So VLRMS is over one cycle root. Then there is mean 1 upon T and square of the VL voltage. Right? Clear? So T is 2 pi, and we go ahead, and this is what we get. Are you seeing equation number 1 on page number 44? Yes. बहुत ज़्यादा इंटरप्ट है. हाँ, आ गया अभी? Yes, sir. Okay, fine. Oh, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम. Okay. Click the Add to Chrome button to continue. Click the Add to Chrome button to continue. Okay, I think everybody is back. Yes, sir. Okay, fine. So everybody on page number 44? Yes, sir. हाँ, सिर्फ जिनीश और चंदन और यश का ही सुनाई दे रहा, बाकी लोग हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, fine. sir. Yeah, so everybody page number 44. Are you seeing equation number 1? Yes, sir. Yeah, Vm by root 2 into the big bracket 1 upon pi into the small bracket pi minus alpha plus 1 upon 2 sin 2 alpha under root, right? ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत कॉमन है. इवन VLRMS ऑफ सेमी एंड फुल कन्वर्टर जो था ना, उसमें भी ये सेम ही एक्सप्रेशन था. इज इट ओके? और हमने एक्सप्रेशन को यूज किया है लैब में भी. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिए जो आप लोगों ने लैब में गलतियां की थी. पाई इज टू बी टेकन एज 1.34, अल्फा इज इन, मतलब 90 रहेगा तो पाई माइनस पाई अपॉन 2 करना पड़ेगा. ओके. और यहाँ पे जो sin 2 अल्फा है, फायरेंगेट इन डिग्रीज. ओके. या तो मैंने एग्जांपल दिया है. इफ AC इनपुट इज 230 एंड अल्फा इज 45 डिग्रीज, how do you solve this equation? So Vm will come VRMS into root 2, and then down you see here at the end of the page. Able to hear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So VLRMS is equal to Vm by root 2. यहाँ पे Vm मैंने 230 root 2 upon root 2 किया, 1 upon pi, pi minus alpha. यहाँ पे मैंने अल्फा को जो 45 डिग्रीज है उसको into pi by 180 करके रेडियन में लाया. So pi minus 0.785 plus 1 upon 2 sin 90, ऐसे करके 219.3 आ गया. Is it okay? Okay, sir. Yeah. So now we comment on VLAV. Okay. So naturally AC voltage controller है, AC to AC है, तो ऐसा हमको आउटपुट में VLAVG में इंटरेस्ट नहीं है, हमको RMS में इंटरेस्ट है, राइट? तो हमने कन्वर्टर्स में we found expression for VLAVG and VL RMS also. Is it okay? क्यों? बिकॉज वो वेवफॉर्म था यूनिडायरेक्शनल था ना, तो यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म्स हैव नॉन जीरो एवरेज एंड आरएमएस, लेकिन बाय डायरेक्शनल वेवफॉर्म्स विल हैव जीरो एवरेज. तो ये जो वेवफॉर्म है तुम्हारा फिगर नंबर 5 में, उसमें लोड वोल्टेज वेवफॉर्म इज बाय डायरेक्शनल, और देखेंगे तो अबव एंड बिलो एक्स एक्सिस द पल्स इज सिमेट्रिकल, राइट? Right, sir. Yeah. Yes, sir. So VLAVG. Yes, sir. So observing the waveform for VL of omega t from figure 5, it is clear that area of above waveform area of waveform above and below x-axis over one cycle is same. So VLAVG is 0. Okay. Yeah.
Yeah, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so above zero value is possible only if SCRs T1 and T2 are exactly identical, which is almost never the case, even if they have same part numbers at T1 and 612. Okay, fine. Yes. Okay, Yeah. sir. Yes, sir. Yeah. So hence non-zero value of VLAVG is a measure and indication of device mismatch. Okay. तो हमारा जो ये वाला circuit है, this one, ये वाला. Are you on figure number 2? Yes, sir. Yeah. So T1 and T2 अगर exactly identical है, तो आउटपुट में दोनों पल्सेस है exactly same एरिया रहेगा और VLAVG होगा 0. मतलब आप अगर लोड के अक्रॉस में एक डीसी वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो 0 दिखाना चाहिए. ओके लेकिन आपको याद है लैब में आपने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो लोड के अक्रॉस में डीसी वोल्ट मीटर है, वो कुछ कुछ किट में 230 मिलीवोल्ट्स, 340 मिलीवोल्ट्स, 100 मिलीवोल्ट दे रहा था, राइट? Yes, sir. यार ये नॉन आइडियल है, ऐसे नहीं होना चाहिए. इंडिकेट करता है कि हमारे एससीआर से वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है. ओके तो ये जो मिसमैच है आइडियली वीएलएवीजी 0 होना चाहिए. इसको अगर ओ फाइन सो 0 होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? A possible solution to above mismatch is to use a bidirectional device called triac, okay, which is functionally a pair of back-to-back SCRs. Is it okay? Yes, sir. Yeah, तो फिगर नंबर 1 में हमने दो SCRs को एंटी पैरेलल में लगाया था, उसको रिप्लेस करके एक सिंगल डिवाइस यूज करेंगे जिसका नाम है BT136, वो ट्रायक होता है. Is it okay? उसको एक ही गेट टर्मिनल होगा. तो ये जो BT136 है वो ये VLAVG को नॉन जीरो से 0 तक लेके आएगा. पता है कैसे? बिकॉज ये जो डिवाइस है आईसी उसके अंदर बोथ SCRs आर फैब्रिकेटेड ऑन द सेम वेफर. इसकी वजह से क्या होता है कि मिसमैच मिनिमाइज हो जाता है. इज इट ओके? Yes, sir. Yeah, so instead of having two separate ICs, T1 612 connected in anti-parallel, we have one single IC called BT136. Hello? Yes, sir. Yeah, so instead of connecting two ICs in parallel, we will use a single IC called BT136, which is functionally same as back-to-back SCRs. यहाँ पे देखा आपने फिगर नंबर 6 में, तो उसके फर्स्ट टर्मिनल को एनोड नहीं MT2 बोलते हैं, कैथोड के बदले MT1 बोलते हैं और एक इसका फायरिंग होता है. गेटिंग मी? इज इट क्लियर? या तो ये सर्किट का एडवांटेज क्या है कि हम केवल एक 1:1 पल्स ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Okay, sir. या फिगर नंबर 1 में दो SCR थे ना, तो दोनों को फायर करने के लिए हमको एक 1:1 पल्स ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, राइट? तो इन दिस सर्किट व्हाट हैपेंस, देयर आर टू एडवांटेजेस दैट the mismatch between two SCRs is avoided using a single chip solution, and second thing is that we can use a smaller pulse transformer 1:1 instead of 1:1:1. Is it clear till Sir? now? Yeah. Sir, but इसमें फायरिंग कैसे हैंडल करेंगे? क्या? Because we want one SCR to fire at alpha and other at pi plus alpha. So या तो Track वो में उसका handle उसका कैसे? उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है, अंदर उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है. Okay, the so point, na? one is Yeah. fire at alpha and the other at pi plus alpha. या वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है कि इट हैपेंस लाइक दैट. गॉट द पॉइंट ना? इसलिए क्या होता है कि हम इसको अगर इफ वी डोंट सी इट एज अ ट्रायक बट वी सी इट कि इसके अंदर दो SCR एंटी पैरेलल में है, तो ऐसा कंफ्यूजन आता है. इज इट ओके? Yes, sir. इसमें मतलब कि Okay. इट इज फंक्शनली इक्वल टू बैक टू बैक SCRs बट it is functionally a single unit. You think getting me? Okay, sir. Yeah. Okay, So sir. now, yeah. So expression for average and RMS current rating of power devices. ये मैं क्यों टॉपिक लिखा है? बिकॉज एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में एक बिट आता है इसके अंदर. मतलब पहला बिट तो होता है कि फाइंड द VLRMS, वो तो बहुत इजी है, लेकिन दूसरा जो बिट आता है एग्जाम में वो आता है कि फाइंड द रेटिंग्स ऑफ द डिवाइसेस. इज इट ओके? Yes, sir. या तो अभी क्या होता है यहाँ पे हमारा लोड वोल्टेज वेवफॉर्म बाय डायरेक्शन होने की वजह से उसका VLAVG 0 है, राइट? या ओके. Yes. Yeah, so load voltage is bidirectional, load current is bidirectional, लेकिन डिवाइसेस के थ्रू जो करंट है यूनिडायरेक्शनल. आपने देखा? आर यू ऑन पेज Yes, नंबर sir. 46? या तो हम देखेंगे कि जो तुम्हारा फर्स्ट SCR है T1, it conducts from alpha to pi. Is it okay? And doesn't. So
the first SCR आप देखेंगे IT1 लिखा हुआ है, T1 and T2 conduct in first and second half cycles respectively. Everybody is able to hear? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yeah, so Yes, sir. T1 के लिए करंट IT1 है, तो IT1 sir. कंडक्ट्स फ्रॉम अल्फा टू पाई, इसलिए उसका वेवफॉर्म देखेंगे तो द वेवफॉर्म एग्जिस्ट फ्रॉम अल्फा टू पाई, डजंट एग्जिस्ट फ्रॉम पाई टू पाई, और उसका पीक Vm/R है. उसी तरह IT2 में जाएंगे तो ये जो सेकंड SCR नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है, तो इट डजंट कंडक्ट फ्रॉम 0 to पाई प्लस अल्फा, कंडक्ट फ्रॉम पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई. देखा आपने? Yes, sir. या तो आप देखेंगे IT1 और IT2 के वेवफॉर्म्स हैं, उसके आप RMS और एवरेज पे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू इनका 0 होगा और कौन सा नॉन 0 होगा. Both will be दोनों non-zero होंगे. या हमारा IT1 IT2 का वेवफॉर्म यूनिडायरेक्शनल है ना, इसके लिए उसका RMS वैल्यू भी नॉन 0 होगा और एवरेज वैल्यू भी नॉन 0 होगा. ओके, तो उसके बाद आएंगे आप बेस्ड ऑन डेरिवेशंस फॉर हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर. एक्चुअली ऐसा लगता है किसी के घर पे न्यूज चालू है. म्यूट कर दीजिए. Hello. या Mute everyone, sir. म्यूट एवरीवन. Yes, sir. ओके Sir, and अगर जरूरत पड़ेगी then we'll unmute ourselves and talk. ओके, तो यहाँ पे सबको म्यूट कैसे कर सकते हैं? So नीचे मोर participants में will- ऑप्शन होगा. So you unmuted the microphone, sir. You have to mute it. ओके फाइन, अभी आवाज सुनाई दे रही मेरी? हाँ सर. ओके Yes, sir. फाइन, एक जन तो रिप्लाई करना चाहिए, उनका कनेक्शन चालू है. इज इट ओके? या Yes, sir. वी आर ऑन पेज नंबर 46. सो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं किया है. ओके, आप इसको वेवफॉर्म्स को देखेंगे ना, इफ यू सी दिस वेवफॉर्म IT1 IT2 का वेवफॉर्म वो करंट वेवफॉर्म है. इसको आप अगर वोल्टेज वेवफॉर्म की तरह अगर अज्यूम करेंगे तो व्हाट इज दिस? यू अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, राइट? Right, sir. हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है बिकॉज इट इज एग्जिस्टिंग ओनली ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल. इज इट ओके? तो अगर ये वाला वेवफॉर्म अगर एक हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर होता तो इसका एवरेज का एक्सप्रेशन क्या होता था? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर VL/AVG ऑफ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर? Vm by 2 pi 1 plus Vm cos upon alpha. 2 pi 1 plus cos alpha. Correct. Is it okay? Is it right? और Yes, इसका जो RMS का एक्सप्रेशन होता है क्या आ जाता है? Vm upon 2. Vm upon 2. वेरी गुड. तो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में VL/AVG के एक्सप्रेशन में Vm upon 2 pi आता है और RMS में Vm upon pi आता है, राइट? लेकिन ये जो वेवफॉर्म किसका है? करंट का है. तो आपको VL/AVG और VL/RMS ऑफ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के एक्सप्रेशन को R से डिवाइड करना है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. या सो यहाँ पे देखेंगे आप कि IT/AVG इज इक्वल टू IT/AVG इज इक्वल टू क्या क्या? देखो मैंने यहाँ पे अगर इसको R को मैं हाइड कर दूंगा इसको, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Vm upon 2 pi 1 plus cos alpha. So it is Vm upon 2 pi R 1 plus cos alpha. This is equation number 3. Everybody is seeing equation number 3? Yes, sir. ओके, और IT/RMS में देखा आपने एक्सप्रेशन क्या है? Vm upon 2 और बड़ा ब्रैकेट है उसको R से डिवाइड किया. इज इट ओके? यस. So kindly note that the average and RMS values of output voltage of half wave control rectifier were this and this. Is it okay? Yes, sir. Yes. या आपको ये एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल में भी यूज करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लैश किया. ओके, so equation number 3 and 4 express IT/AVG and IT/RMS as a function of firing angle alpha. Everybody on page number 47? Yes. Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine.
या तो अभी आप देखेंगे, आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में भी आपने ये शायद कंसेप्ट पढ़ा होगा कि आप कोई भी डिवाइस आप चूज करते हैं सर्किट के लिए, तो उसका जो रेटिंग्स होता है दैट इज should always be equal to 1.5 to 2 times the maximum current or voltage which will appear across it. You know this thing? इसको सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं. Yes, sir. या तो क्या करते हैं, अगर मुझे कोई ट्रांजिस्टर चूज करना है सर्किट में और मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या देखूंगा कि वो जो ट्रांजिस्टर जो पॉइंट्स के बीच में लगने वाला है, वहां पे अगर कोई वोल्टेज आती है, मैक्सिमम वोल्टेज सपोज आती है x, तो मेरा जो ट्रांजिस्टर के डेटा शीट में उसकी जो Vmax की वैल्यू होगी ना, वो 1.5 या 2 टाइम्स x होना चाहिए. इज इट ओके? Okay, sir. Yeah, it's always like that. So suppose if I find that between 2 points, if a transistor is to be connected and the maximum possible voltage which can come across it is 100 volts, then my rating of the selected transistor should be 150 to 200 volts. Is it okay? Right, sir. Yeah. तो अभी आप देखेंगे ये जो एक्सप्रेशंस है ना, इक्वेशन नंबर 3 and 4, ये एक्सप्रेशंस जो है दे फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ अल्फा है. ओके? हमको अगर आर एबल टू हियर? Yes, sir. Yes, या sir. या सो Yes, sir, we can इसके hear. अंदर क्या होगा कि अभी हमको अगर ट्रांजिस्टर सिलेक्ट करना है, तो इन दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट की IT AVG की वैल्यू कितनी मैक्सिमम आएगी, राइट? सो व्हेन विल IT1 AVG बी मैक्स? Alpha 0. अल्फा इज इक्वल टू 0. तो अल्फा इक्वल टू 0 जब होगा तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Vm अपॉन पाई इनटू R हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. या और RMS में वापस 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर में? अल्फा को 0 रखेंगे, पाई माइनस 0 साइन 0 0, तो एक्सप्रेशन में आएगा Vm अपॉन VM. Vm अपॉन 2R आ जाएगा, करेक्ट? यस. तो न्यूमेरिकल्स में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 में अल्फा की वैल्यू को 0 डालते हैं, दैट विल गिव अस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवीजी एंड आरएमएस, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. इज इट ओके? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक जन अनम्यूट करके रखो तो एटलीस्ट आई कैन अंडरस्टैंड. ओके? हाँ, sir. या I'll do सो that. क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, जो हमने निकाली यहाँ पे, एवरेज वैल्यू Vm बाई पाई आर और मैक्स इज Vm अपॉन 2R, राइट? तो ये जो हमारा आएगा ना मैक्स, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में. इज इट ओके? Okay, sir. या नाउ वी गो टू पेज नंबर 48. इज इट ओके? एवरीबॉडी इज ऑन पेज नंबर 48? Right, sir. Yes. या पेज नंबर 9 दिख रहा है आपको, पीडीएफ में न्यूमेरिकल्स है. ओके? हाँ. या सो न्यूमेरिकल पढ़ता हूं मैं. सिंगल फेज एसी रेगुलेटर feeds a resistive load of 10 ohm, supplies 230 volt 50 hertz. If firing angle is 45 degree, calculate power absorbed by the load. Okay, straight forward numerical है, एग्जाम में आ सकता है. तो अभी सॉल्यूशन देखेंगे. तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जब भी सप्लाई एसी होता है, उसमें अगर उन्होंने कोई भी वैल्यू ली है, तो वैल्यू हमको अज्यूम करना है क्या है, वो आरएमएस, राइट? Right, sir. या एक मिनट. या सो गिवन Vs इज 230 वोल्ट, मैंने लिखा है Vs RMS है, अल्फा 45 डिग्रीज है, उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, R इज 10 ओम. ओके? Yes, sir. ओके. व्हाट इज आस्क्ड इज पावर एब्जॉर्ब बाय लोड, मतलब इसका दूसरा नाम है कि हमको VL RMS निकालना है. ओके? सो इफ इट इज गिवन कैलकुलेट VL RMS, VO RMS या पावर एब्जॉर्ब बाय लोड, इट इज वन एंड द सेम थिंग. ओके? So what I did first is that मैंने VM को कैलकुलेट करके रख दिया. ओके? सो PL RMS is VL RMS square upon R. ओके? तो I substituted alpha as 0.785, sin 2 alpha में alpha को 45 डिग्रीज रखा, and then VL RMS 219.3 आ गया सबका? Yes. Okay, so PL RMS is VL RMS square upon R. The answer is 4.809 kilowatt. Okay? Yes, sir. Okay. Fine.
Jinisha, actually I feel some more people should unmute themselves. Can I unmute them? Yes, sir. You can request to unmute. Okay, request to unmute क्या? Request कैसे आता है? Okay. Okay, एक दो जन हो गए. So just ask them to respond and they will. Okay, ठीक है, अभी दो चार लोग आए. Okay, yeah. So go to numerical number 2 में सब लोग. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, fine. जिनिशा के अलावा कोई एक दो जन yes बोलो तो समझ में आएगा, बाकी क्राउड सुन रहे हैं. Okay. Yes, sir. Yeah, so second numerical में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखा आपने? फर्स्ट numerical में क्या दिया हुआ है? Supply is 230 volt 50 hertz. सेकंड numerical में एक्सप्रेशन दिया, देखा आपने? Yes, sir. Yeah, VS is 100 sin 377t. यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? VM sin ओमेगा t दिया हुआ है. अगर यहाँ पे स्टूडेंट अगर 100 को √2 से मल्टीप्लाई करेगा ना तो गलती हो जाएगा, देखा आपने? Yes. Yes, 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 sir. sir. Yeah, so numerical given VS is 100 sin 377t. It is VM sin omega t. A voltage source defined as VS drives a 100 ohm load through back-to-back connected thyristors, right? अभी यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज किया है सिंगल फेज एसी रेगुलेटर और डायरेक्टली सप्लाई में आरएमएस की वैल्यू दी है. सेकंड न्यूमेरिकल में मैंने अलग वर्ड यूज किया है, बैक टू बैक कनेक्टेड थायरिस्टर्स, राइट? तो जब हम ये वर्ड यूज सुनते हैं बैक टू बैक, मतलब समझ में आएगा न्यूमेरिकल एसी वोल्टेज कंट्रोलर का. इज इट ओके? Yes, sir. या सो फायरिंग एंगल चेंज करके 60 डिग्री है, राइट? अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन दिया VS का उसमें उन्होंने VM दिया है डायरेक्टली. तो यहाँ पे VM 100 वोल्ट लेना. ओके, प्लीज डोंट मल्टीप्लाई 100 बाय √2, अदरवाइज योर आंसर विल गो रॉन्ग. ओके, सो VM इज 100, R इज 100, अल्फा इज 60 डिग्री, उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया. एंड अगेन सेम एक्सप्रेशन, VL RMS स्क्वायर बाय R, VL RMS निकल के 63.36 वोल्ट आए. ओके, Okay, sir. Yes, sir. yeah, so PL RMS is VL RMS square upon R. Answer is 40.2 watt. Okay, yes. Okay, sir. So हमारे न्यूमेरिकल नंबर 1 and 2 सेम थे. डिफरेंस यही था कि पहले न्यूमेरिकल में मैंने डायरेक्टली 230 वोल्ट RMS दिया है, सेकंड में एक्सप्रेशन दिया है, तो जिसमें से हमको इंटरप्रेट करना है. ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो एक थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है. देखा आपने? कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू हीटर एलिमेंट. देखा आपने? एवरीबॉडी इज ऑन Right, sir. नंबर 49. Yes. Yes, sir. पेज नंबर 49 है. तो यहाँ पे उन्होंने सर्किट दिया हुआ है, वर्ड्स नहीं यूज किया, राइट? यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रायक दिया हुआ है. ट्रायक का मतलब है एसी वोल्टेज कंट्रोलर का न्यूमेरिकल है. अल्फा को π/6 रेडियन दिया हुआ है, सोर्स में 230 वोल्ट दिया हुआ है. ओके, या इज इट क्लियर? Yes, sir. या अगर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर लिखा होता 326 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यू हैव टू टेक 326 एज आरएमएस. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. या ये नोटेशन है स्टैंडर्ड. वोल्टेज कॉमा फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज के सामने लिखते हैं, मतलब वो वोल्टेज को आपने आरएमएस लेना है. ओके, यस. तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे उन्होंने लोड के साइड में उन्होंने 2 किलोवाट का हीटर दिया हुआ है. इज इट ओके? या तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में हम VL RMS का स्क्वायर करके R से डिवाइड करते थे PL RMS निकालने के लिए. ये वाला न्यूमेरिकल में उन्होंने R की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है. ओके, तो कैसे निकालेंगे R की वैल्यू? ये जो 230 वोल्ट 2 किलोवाट्स है उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि रेटेड वोल्टेज जब मिलेगा हीटर को तो 2 किलोवाट का पावर कंज्यूम करेगा. ओके, तो व्हाट दे आर गिवन इज द रेटेड वोल्टेज एंड पावर रेटिंग. ओके, तो कैसे करते हैं Okay, इसको? या तो 2 किलोवाट को P लिया, वोल्टेज को 230 लिया. यू नो दैट P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. ओके, देखा आपने? यहाँ पे हीटर इज 230 वोल्ट 2 किलोवाट, पावर इज V स्क्वायर बाय R, और यहाँ पे रेटेड वोल्टेज ले लिया है हमने, राइट? सो R इज V रेटेड स्क्वायर अपॉन P. एवरीबॉडी इज विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so using the values of 2 kilowatt and 230 volt, we get R as 26.45. Then, using the value of alpha and input 230 volt RMS, we calculate the RMS value as 226.58 volts. Okay, तो यहाँ पे PL RMS कैसे निकलेगा?
226.58 स्क्वायर अपॉन 26.45। आपको न्यूमेरिकल में चेंज दिखा? Yes, sir. Yes, या sir. तो ये पहले वाले न्यूमेरिकल्स में आर को 10 ओम दिया था, 100 ओम दिया था। यहाँ पे हमको हीटर की रेटिंग में से आर निकालना है। इज इट ओके? Yes, sir. Right, Yeah. sir. Yeah. Yes, sir. So Yes, sir. value है 194 on. Any questions? No questions? Yeah. Should I go ahead? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, yeah. Fourth numerical, a single phase AC regulator driven by a supply given by, यहाँ पे वापस मैंने VS को दिया हुआ है 156 sin 377T drives 4 ohm resistive load. If devices are fired at 120 degree and 300 degree respectively, calculate the following. क्या पूछा है? Output load power मतलब PLRMS, वो तो straight forward है. Average current flowing through thyristors and RMS current flowing through thyristors. Okay? With me? Everybody is with me? Yes, sir. sir. ओके तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले वीएम, हमारे फॉर्मूला में वीएम आता है ना, तो न्यूमेरिकल में से वीएम निकालना है। ये न्यूमेरिकल में वीएम 156 दिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सप्रेशन इज वीएम sin omega t. डोंट मल्टीप्लाई 156 by √2 to get vm. ओके, vm 156, r is 4 ohm. तो फर्स्ट केस लिया मैंने 120 डिग्री फायरिंग एंगल का, अल्फा का वैल्यू आया 2.094 रेडियंस, पीएलआरएमएस आईटी आरएमएस। ओके, सो वीएलआरएमएस कितना आया 48.73, पीएलआरएमएस आया वीएलआरएमएस स्क्वायर अपॉन 4 593.6। ओके, और हमारे एक्सप्रेशंस जो है आईटी के, ओके, कौन से इक्वेशंस थे? गो बैक, दैट इक्वेशन नंबर 3 and 4, equation 3 and 4, page number 46. Okay, yeah. So ITAVG expression में डाल के 3.1 एम्पियर आया, ITRMS has come out to be 8.61 एम्पियर. Okay, Right, sir. yeah. अभी ये जो न्यूमेरिकल है इसको मैंने 300 डिग्री के लिए सॉल्व नहीं किया है. Okay, So we'll do it, sir. yeah. So what you have to do is that everything remains the same. Only thing is that you have to do alpha equal to 300 equal to 300 into pi by 180 radians आ गया. Resolve it for Yes, sir. VLRMS and here put alpha as 300 degree here and here and you get the value. Is it okay? Okay, sir. Yes, sir. Yeah. One more bit which can be added by university is that find the ratings of the thyristors. Okay? Okay, sir. Yeah. तो रेटिंग के लिए क्या करेंगे हम? We will put alpha as 0 here. तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन Vm upon 2 pi r. Is it okay? Yes, sir. Okay, sir. या उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली आरएमएस रेटिंग ऑफ थायरिस्टर कितनी आएगी? यही एक्सप्रेशन में आप डालेंगे अल्फा इक्वल टू 0, आपका एक्सप्रेशन Vm अपॉन 2r आ जाएगा. जो भी आएगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारे बिट सॉल्व हो जाएगी. इज इट ओके? Yes, sir. या सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड एसी वोल्टेज कंट्रोलर. इट्स ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So now we go to SMPS. So you go to page number 52. Okay. Everybody is with me? Yes, sir. Okay. Yeah. Fine. Yes, sir. Okay. So SMPS is not a new thing for the student, because I have heard from other teachers of TE that you have designed an SMPS in the past. Yes, sir. In ESD last semester. Last semester you designed SMPS. Yes, sir. Yes, sir. Very good. तो सर क्वेश्चन में भी आज दैट सर हमने ऑलरेडी डिजाइन किया तो वापस क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज दिस नोट्स आर मेंट टू टेल अ स्टूडेंट हाउ मच टू राइट फॉर अ 4 to 6 marks question. Is it okay? Yes. Yeah, Okay, sir. that is the whole purpose. So SMP stands for switching mode power supply. यहाँ पे नीड दिया हुआ है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, पढ़ लेता हूँ. ओके, सो पावर सप्लाई और a DC voltage source is the heart of all electronic systems. Okay, उसको कंप्यूटर के मदरबोर्ड में चाहिए, everywhere it is used. Okay, these play the role of plus VCC plus VDD for amplifier circuits, op amps, digital ICs and even computer motherboards.
any variation in the value of power supply beyond a certain margin, जिसको tolerance बोलते हैं, can lead to consequences such as change in operating region of transistors, change in gain, change in logic output of digital systems, and damaging ICs also. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Hence, these power supplies must have very good load and line regulations. So output voltage exhibits minimum variations in spite of variation in IL, load current, and mains respectively. Okay. So you must have studied what is load regulation. Yes, sir. Yes, What is sir. load regulation? Load current is varied and then voltage, output voltage is measured. Yes. So by how much does the load voltage vary? When the load current is varied, it's called a load regulation. So mathematically it is Right. delta VL upon delta IL. And at that time, the mains voltage is kept constant. And in line regulation, what we do is that if there is a fluctuation in the 230 volts mains, that is wall socket supply, by how much does the VL change? So delta VL upon delta V mains, that is called as line regulation. We will be doing this in the experiment of SMPS. Is it okay? Yes. तो ideally आप बता सकते हैं कि load and line regulation की ideal values कितनी होनी चाहिए? What are the ideal values of load and line regulation for any power supply? Load regulation. And load regulation is change in load voltage per se change in load current. तो load change in load voltage कितना होना चाहिए ideally? Zero. Zero. तो load Zero, sir. regulation is ideally zero. Line regulation कितना होना चाहिए? वो भी zero होना चाहिए. Zero. तो तुम्हारा मेंस जो है वो 230 से अगर 40 वोल्ट नीचे जाता है तो भी तुम्हारा आउटपुट 5 वोल्ट होना चाहिए. 230 से 40 वोल्ट ऊपर जाता है तो भी वो 5 वोल्ट ही रहना चाहिए. What the point? So irrespective Right, of sir. fluctuation in mains, if load voltage remains the same, that is called as ideal line regulation. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So there is something called as linear power supply. Okay. तो अभी आपने MOSFET के एक्सपेरिमेंट में पावर सप्लाई यूज किया था ना? हाँ याद है सर. आपको? या आपने VGS वेरी किया 0 to 5 और आपने VDD वेरी किया 0 to 60. यस. उसके बाद SCR के एक्सपेरिमेंट में भी आपने यहाँ पे VG को 8 वोल्ट रखा था और यहाँ पे आपने 0 to 30 वेरी किया था. याद है SCR में? VGT, Yes, sir. लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट. तो वो जो पावर सप्लाईज थे ना तुम्हारे सामने, उसको लीनियर पावर सप्लाई बोलते हैं. लीनियर पावर सप्लाई बोलते हैं. व्हाट द पॉइंट? Okay, sir. ओके. या लीनियर पावर सप्लाई क्यों? उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे हम तो लोड और सप्लाई के सीरीज में एक सीरीज पास ट्रांजिस्टर होता है. ओके. यूजुअली पावर ट्रांजिस्टर होता है. यू रिमेंबर दैट डिजाइन? Yes, sir. We have designed that also. Yeah, so Yes, sir. We designed the power supply. linear power supply में load current actually flows to that power transistor, which is usually 2N3055. याद है आपको? Power transistor था वो. हाँ सर. Yeah, तो वो linear power supply बोलते हैं. तो LPS fulfills the above requirements with following pros and cons, right? तो SMPS की requirement को appreciate करने के लिए हमको पहले LPS को थोड़ा हमने उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा. राइट. तो प्रोस क्या है? इट इज हैविंग वेरी लो आउटपुट रिपल. देयर इज नो RFI एंड EMI. वहां पे कोई भी हाई फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती सिस्टम में, इसलिए RFI EMI की प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन कॉन्स क्या है? द एफिशिएंसी इज वेरी लो, 40 to 50%. इट नीड्स अ लार्ज हीट सिंक एंड द बल्की ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड. इज इट ओके? Yes, sir. या तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक उसूल है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, वैसे वैसे कुछ कुछ कंपोनेंट का साइज कम होता है. कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम वेयर एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द कंपोनेंट साइज डिक्रीजेस? कैन यू टेल मी दैट concept? Capacitors. Yeah, capacitor or Resonant Resonant. आंसर इज फिल्टर. ओके. आपको एक लो फ्रीक्वेंसी को Yeah. फिल्टर करना है तो L और C के कंपोनेंट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा. व्हाई? बिकॉज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1/2 गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yeah, so जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ LC. इसलिए फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही LC कंपोनेंट्स का वैल्यू कम लगेगा. राइट. बिकॉज लीनियर पावर सप्लाई है वो इंटरनली 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, इसलिए उसमें फिल्टर्स जो लगते हैं ना वो सारे लार्ज साइज होते हैं. इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yeah. So now Yes, sir. sixth point is SMPS overcomes drawbacks with the following advantages. First is efficiency is very high. Okay, compact size. और यहाँ पे आपने देखा LPS में एक नॉर्मल एयर कोर ट्रांसफार्मर यूज होता है, SMPS में फेराइट कोर यूज होता है. आपने यूज किया है फेराइट कोर आपके SMPS डिजाइन में? Yes, sir. Yeah, we had used ferrite core transformer. Noiseless output greater than 18 kilohertz. There is very good electrical isolation. और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है SMPS का वो है कि एक ऐसा पावर सप्लाई है जिसके अंदर मल्टीपल आउटपुट वोल्टेजेस विथ मल्टीपल आउटपुट करंट्स आता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. या Yes, sir. तो आगे जाके मैं SMPS का आपको फोटो दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि उसके जो स्पेसिफिकेशंस जो है ना वो चिपकाए होते हैं SMPS के यूनिट पे, वो आप पढ़ के देखो. Okay? Primary difference between LPS and SMPS is that the electronic switch which stands between unregulated power supply and critical load operates in linear region in the former and cut off or saturation in latter. Is okay? ये एक वाइवा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जामिनर पूछेगा कि एक LPS की एफिशिएंसी क्यों लो होती है. व्हाई? बिकॉज तुम्हारा जो स्विच होता है ना बीच में वो लीनियर रीजन में, इट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर. और SMPS के अंदर वही ट्रांजिस्टर है, उसको हम एज अ स्विच यूज करते हैं, बट हाई फ्रीक्वेंसी स्विच. ओके, हेंस द नेम्स आर लीनियर पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई. ओके, एवरीबॉडी इज ऑन पेज नंबर 53. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आर यू sir. सीइंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS? Yes, sir. Yes, sir. या ओके, तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसके अंदर आप देखेंगे उसको लैंडस्केप बोर्ड में किया है. आप बॉटम में देखो मेंस है, देन देयर इज रेक्टिफायर प्लस फिल्टर. ओके, Yes, sir. at the output of rectifier plus filter it is unregulated DC supply. Yes, sir. या उसके बाद एक आपको एक MOSFET दिखा, राइट? ड्रेन सोर्स गेट, राइट? यस और नो? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. या उसके बाद आपको एक LC फिल्टर दिखा है, राइट? Yes. या देन यू हैव फीडबैक. अभी आप ध्यान से देखेंगे कि चॉपर में भी ऐसा ही कुछ था. देखा आपने चॉपर में? यू रिमेम्बर चॉपर सर्किट? Yes, sir. Yes, चॉपर sir. सर्किट में चॉपर सर्किट सबसे पहले वीइन था, उसके बाद एक MOSFET था, MOSFET. उसके बाद लोड था, राइट? और नीचे कंट्रोल सर्किट था. Right, Yes. sir. या तो वो कौन सा चॉपर था बता सकते हैं आप? वाज इट अ स्टेप अप और अ स्टेप डाउन चॉपर? वो वाला जो Step down. स्टेप The डाउन था, step राइट? down. या सो whenever the chopper switch is connected in series with the input it is called as स्टेप डाउन चॉपर. down. और उसी को जब हम शंट में लगा देते हो स्टेप अप चॉपर हो जाता है. हमने Step up, एक्सप्रेशन किया था V in upon 1 minus डेल्टा, वो वाला. तो या सो ये बेसिकली चॉपर है, राइट? तो देयर इज अ स्विच, देयर इज LC फिल्टर. और देखा आपने फीडबैक सर्किट है. नेचुरली फीडबैक सर्किट क्या करेगा? आउटपुट को सैंपल करेगा, और सैंपल करने के बाद उसका एक छोटा सा पोर्शन है यूजिंग अ फीडबैक फैक्टर बीटा, वो यहाँ पे लगाएगा. यू आर सीइंग द फीडबैक सर्किट का आउटपुट को मैंने क्या बोला है? VFB. Yes, sir. Yes, sir. That is a function of V output. Okay, तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो VFB बढ़ेगा, आउटपुट वोल्टेज कम होगा तो VFB भी कम होगा. ओके, दैट फीडबैक वोल्टेज इज देन गिवन टू अ कंपैरेटर. कंपैरेटर को एक रेफरेंस वोल्टेज देते हैं. देखा आपने Vref? यू सॉ V रेफरेंस? Yes, sir. या तो ये जो V रेफरेंस है वो एक्चुअली दैट इज अ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म. इट्स अ ट्रायंगुलर, इसको सॉटूथ बोलते हैं, बराबर ना? सॉटूथ आएगा ना? Sawtooth. हाँ, sir. या सो रेफरेंस वोल्टेज इज सॉटूथ वेवफॉर्म, राइट? ये जो कंपैरेटर है वो फीडबैक वोल्टेज की विच इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन और इंडिकेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज कंटिन्यूअसली कंपेयर्ड विद द सॉटूथ वोल्टेज, और उसके बाद आउटपुट पे PWM निकलता है, राइट? और ये जो PWM है ना, दैट विल स्विच द MOSFET. इज इट ओके? Okay, sir. Yes, sir. नाउ यू कम टू वेवफॉर्म, राइट? तो एक से हमको पता चला कि आउटपुट वोल्टेज इज सैंपल्ड टू गेट अ फीडबैक वोल्टेज which will be a DC. This DC level is compared continuously with a sawtooth waveform, और उसका कंपैरिजन के हिसाब से एक PWM waveform बाहर निकलता है. Seeing this, are you able to see this? Yes, sir. Yes, Waveforms. sir. Yeah, this is figure, right? सबसे पहले देखो कि जो फर्स्ट वेवफॉर्म उसमें मैंने दो वेवफॉर्म बनाए, Vref एंड VFB. तो आपको सॉटूथ दिख रहा है ना? सॉटूथ इज V रेफरेंस. ओके,
और आपको एक दिख रहा है, यू आर सीइंग 3 हॉरिजॉन्टल लेवल्स, एक ब्लू कलर का दिख रहा है बोल्ड लाइन, हाँ Yes, सर, sir. उसके थोड़े ऊपर एक डॉटेड लाइन दिख रहा है, उसके नीचे भी एक डॉटेड लाइन दिख रहा है, देखा? यस सर, या Yes, तो sir. जब अगर सपोज हमारे एसएमपीएस का आउटपुट अगर सपोज 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फीडबैक वोल्टेज होगा वो ये बोल्ड लाइन है, देखा आपने? इट इज पोजीशन नंबर 1, देखा? राइट सर, 1 2 3 है, तो जो जो 1 नंबर की जो लाइन है, दैट इज द फीडबैक वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेट वोल्टेज आउटपुट 12 वोल्ट। ओके, सपोज तुम्हारा आउटपुट है वो 12 से बढ़ जाता है, ओके, सपोज 14 वोल्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? फीडबैक वोल्टेज रीचेस द लेवल 2। आर यू सीइंग दैट? Yes, sir. यस, और अगर आउटपुट वोल्टेज 12 से कम होकर 10 वोल्ट हो जाता है, देन दिस VFB रीचेस द लेवल नंबर 3, देखा आपने? Yes, sir. तो लेवल 1 corresponds to 12 volt output, level 2 corresponds to 14 volt output, error of 2 volts, and level 3 corresponds to an error of -2 volt, that is 10 volt, देखा आपने? यस सर, या अभी आप देखिए VPWM1, तो VPWM1 जो वेवफॉर्म है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन सॉटूथ एंड लेवल नंबर 1। आप देखेंगे और डॉटेड लाइन देखो आप कैसा है, देखा आपने? हाँ सर, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी? सुनाई दे रहा है? Yes, या sir. तो PWM1 जो वेवफॉर्म है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन लेवल 1 एंड सॉटूथ। ओके, VPWM2, ये जो PWM2 है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन लेवल 2 एंड सॉटूथ, देखा आपने? यहाँ पे देखा आपने कि PWM की विड्थ कम हो गई, देखा? हाँ Yes, sir. सर, हाँ, तो जब आउटपुट वोल्टेज बढ़ा तो VF भी बढ़ गया, उससे करस्पॉन्डिंग में विड्थ कम हो गई, देखा आपने? Yes, हेलो, sir. या एंड VPWM3 जो है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन लेवल 3 एंड सॉटूथ, देखा आपने? यस सर, Yes, sir. हाँ, अभी आपको पता चला कैसे वर्क कर रहा है वो। तो जब Yes, आउटपुट sir. वोल्टेज बढ़ता है, उसका रिजल्ट होता है कि पल्स विड्थ रिड्यूसेस, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, रिजल्ट इज द विड्थ इंक्रीजेस। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अभी आप मुझे बताओ कि तीनों जो वेवफॉर्म है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, VPWM 1 2 3, इसमें कौन से वेवफॉर्म की ड्यूटी साइकिल सबसे ज्यादा है? PWM3. PWM3, 3, राइट? तो अगर ये चॉपर है और ये स्टेप डाउन चॉपर है, तो VLAVG इज इक्वल टू डेल्टा इनटू Vin, राइट? तो टेल मी Vin. नाउ कि कौन से वेवफॉर्म के लिए आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा? PWM3 के लिए. 3, राइट? 3 तो सर, 3 के लिए ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम है, उससे कम जो ड्यूटी साइकिल है वो है PWM1 के लिए, ओके, यस और सर, नॉमिनल के लिए। व्हाट द पॉइंट? या तो यहाँ पे देखिए, एज सीन इन वेवफॉर्म्स अबव, 1 corresponds to nominal set point voltage say 12 volt, 2 corresponds to increase that is 14 volts, and 3 corresponds to 10 volts, देखा? क्लियर? यस Yes, सर, sir. या तो पढ़ के दिखाता हूँ, एक्सप्रेशन दिया है मैंने। VPWM2 has lesser pulse width than PWM1, leading to lower duty cycle. So as D reduces, VO reduces, and VO is restored to set point value. Okay? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला जो नॉमिनल वोल्टेज है PWM1 के लिए ड्यूटी साइकिल D1 है, उसके लिए 12 वोल्ट आउटपुट आएगा। जब वोल्टेज हो जाएगा 14, दैट इज लेवल 2, तो डेल्टा कम हो जाएगा, और ये कम होने की वजह से तुम्हारा जो VO है, दैट विल बी ब्रॉट बैक फ्रॉम 14 वोल्ट्स टू 12 वोल्ट्स, ओके, दैट इज VO रिड्यूसेस। सिमिलरली जब तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा 10 वोल्ट, तो PWM का विड्थ बढ़ेगा, D इंक्रीज होगा, and the output will be restored from 10 volts to 12 volts. Okay, PWM3 has larger pulse width, duty cycle has increased, D increases, VO increases. Is it clear? यस सर, क्लियर, Yeah. So इसका repetition नहीं करूंगा मैं. So right from page number 42, 41, right? Page number 40. Is it clear? राइट सर, यस सर, Yeah. So there are 35 participants now. 6 have left. No issues. We are happy that they came online. तो पेज नंबर 40 से लेके 54 तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले देखा कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर को
AC चॉपर भी बोलते हैं। एंड इसका डिफरेंस क्या है, दैट इट गिव्स अस अ बायडायरेक्शनल वेवफॉर्म अनलाइक कन्वर्टर्स व्हिच गिव अ यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म। सर्किट अरेंजमेंट में वी हैव 2 यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस इन पैरेलल। उसका एनालिसिस किया हमने, वेवफॉर्म देखे, उसके बाद हमको VLRMS का एक्सप्रेशन मिला। इज इट क्लियर? सर आपका थोड़ा सा ये हो गया था, हैंग हो गया था बीच में। ओके, अभी ठीक है? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने इसका सर्किट देखा, वी सॉ द सर्किट एनालिसिस फॉर एवरी हाफ साइकिल, वी ड्रू द वेवफॉर्म्स। आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली नाउ? यस सर। Yes sir. Yeah, waveforms. From waveforms, we derive the expression which is same as VLRMS for semi and full converters. We commented that because output is bidirectional, symmetrical, ideally VLAV is 0. If it is non-zero, indicates mismatch. Solution of this mismatch is using a single device, a one-chip solution, TRIAC BT136, which has a single firing point alpha. Then we also discussed about the average and RMS currents flowing through the devices. We derived the expressions from the expressions for AVG and RMS. We also found out that what is the maximum average, maximum RMS by substituting alpha equal to 0, and the rating would be 1.5 times safety factor. Okay? Okay sir. Yeah, Okay, sir. न्यूमेरिकल टाइप 1 जिसमें हमने देखा RMS वैल्यू दी है, फायरिंग एंगल दिया है, लोड रजिस्टर की वैल्यू दी है, सॉल्व किया हमने। सेकंड इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था कि हमको न्यूमेरिकल में सोर्स जो है उसका RMS नहीं दिया, लेकिन VM डायरेक्टली दिया हुआ है। वी हैव टू टेक केयर वी डोंट मल्टीप्लाई दिस VM बाय √2, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। थर्ड इज हीटर न्यूमेरिकल, ये फेवरेट है, यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट हर बार यही न्यूमेरिकल आता है। इज इट क्लियर? Okay Yes, sir. या यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने यहाँ पे R की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन उन्होंने हीटर का रेटिंग दिया हुआ है। तो हीटर का जो है, तो आपको अल्टीमेटली कोई भी रेगुलेटर के न्यूमेरिकल में R की वैल्यू होनी चाहिए, दी नहीं है तो निकालना है। कैसे निकालना है, जो पावर रेटिंग है उसको हमने स्क्वायर ऑफ रेटेड वोल्टेज से Hello? डिवाइड करना है। या सो दिस हाँ. इज P, दिस इज V रेटेड, सो इट इज V स्क्वायर बाई P। आ गया, उसका सॉल्व वैसे ही करना है। ओके, लास्ट वाला न्यूमेरिकल उसमें रेटिंग्स निकालने हैं अल्फा के लिए, और आप जो है ना 300 के लिए आप खुद सॉल्व कर देना। ओके yes, Okay sir. ओके, SMPS डिस्कस किया, वी डिस्कस दैट हाउ SMPS इज डिफरेंट देन LPS, उसके प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस किए। सर्किट डायग्राम डिस्कस किया हमने, सर्किट डायग्राम नहीं, ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया, हाउ इट इज बेसिकली अ चॉपर, और चॉपर में उन्होंने ड्यूटी साइकिल का कांसेप्ट यूज किया। ओके Yes sir. फाइन। yes, या sir. जिनिशा कितना मिनट हो गया अभी अपना? So I don't know sir, इसमें दिख नहीं रहा है सर वैसे, but I दिख नहीं, think नहीं इतना है कि 40 हम minutes अभी से तो अभी वो कट नहीं है, मतलब आपके 40 मिनट्स के कुछ मिनट्स बाकी है हमारे, राइट? Yes, everybody is able to hear me? Yes Yes, sir sir. now. Yes, sir. Yeah. सर आई हैव अ डाउट। Yeah? सर अल्फा को हम लोग 180 से ज्यादा कैसे रख रहे हैं, मतलब 300 वगैरह? कहाँ तो पे? उस केस में क्या होगा सर? वो 300 डिग्रीज है उस हाँ, वो प्रॉब्लम में। मिस्टेक हो गया, right. किधर, इधर ना? अरे अरे सुनो सुनो, ये वो नहीं है, इट इज अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा। यश सर हाँ हाँ ओके। समझा? हाँ सर यस। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल अज्यूम करता है कि हमने दो SCRs को बैक टू बैक लगाया। ओके यश, आर यू लिसनिंग? Hello. या Hello. या अभी आ रहा है? हाँ Yes, sir. sir. हाँ यश है, यश ने क्वेश्चन पूछा था। So basically it is alpha and pi plus alpha. पाई प्लस अल्फा। हाँ, या तो इसके अंदर दिस इंडिकेट दैट इट इज यूजिंग नॉट अ ट्रायक, सिंगल डिवाइस नहीं यूज कर रहा है, वो दो SCR बैक टू बैक यूज कर रहा है। ओके ओके सर। या Okay, सो ये so इसको हम अल्फा 1 बोलते हैं। अल्फा 1 इज अल्फा एंड अल्फा 2 इज पाई प्लस अल्फा, राइट? तो ये 120 एंड 120 प्लस 180 है। ओके या सो आई एम वेरी सॉरी, इट इज यू आर नॉट सपोज्ड टू सॉल्व फॉर 300, इट इज पाई प्लस अल्फा। क्लियर? Yes sir. ओके, तो इसको मैं अभी मिनिमाइज करता हूँ और मैं देखता हूँ, राइट? या ओके हाँ सर। sir.
या सो नाउ वी गो टू द लास्ट बिट, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाउ टू परफॉर्म SMPS एक्सपेरिमेंट इन लैब। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। ये भी क्या कहते हैं, PDF को बंद कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Close this and you please open this particular PDF, PE practicals at a glance. ठीक है, मैं उसको स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। Are you able to see this? ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है सर। अभी आ रहा है, अभी आया रहेगा, देखो ना। यस सर। हाँ किसको यस सर। ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है? प्रणव को? नहीं सर, दिख रहा है, Yes, दिख रहा है। हाँ, यार, यू सीइंग तो दिस? अभी देखा सर। हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। हाँ, देखा आपने फर्स्ट स्लाइड कैसे बनाया मैंने? आई स्पेंड 30 मिनट्स फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड। ओके सर। देखा क्या है? PE प्रैक्टिकल एग्जाम, लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। देखा कलर, देखा आपने? यस। हाँ सर। हाँ, इसका आपके फॉन्ट का नाम पढ़िए वर्ड में, इसको बोलते हैं चिलर। चिलर या क्रीपी, क्रीपी कुछ तो इसका फॉन्ट का नाम है। सर चिल्लर है सर। चिलर, राइट? शायद। हाँ, तो उसके अंदर तो ऐसे ब्लड के ड्रॉपलेट्स भी आते हैं, आने चाहिए थे नीचे, राइट? तो लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट टू परफॉर्म आवर वेरी बेस्ट। ओके, सो गो अहेड नाउ। इसका तो हम बाद में लेने वाला सेशन। ओके, आई टेल यू व्हिच स्लाइड यू शुड गो। आप लोगों ने PPT देखा है? हैव यू सीन दिस PDF? हाँ सर। ये उस प्रैक्टिकल्स पूरा जो कंबाइंड तो है ये उसमें भी उसका है एक ना ये? पार्ट, या उसका वो कंबाइंड ही है कि 3 चीज उसमें। सबसे पहले बेसिक्स वाला जो है ना, DMM प्रोब वाला, फिर ये है उसके लास्ट में P रेडी रेफरेंस शीट है। ओके, ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। चाहे तो आपको वो पसंद है तो वो वाला दिखाता हूँ। ये वाला, राइट? हाँ एवरीबॉडी ये वाला। सीइंग दिस यस नाउ? सर। या यस सर। तो ये जो है पहला वाला, जो मैंने सेमेस्टर स्टार्ट में जो फ्लैश किया था, वो वाला है। तो ये तो आपको पता है। ओके, उसके बाद ये चालू होता है। ओके, अभी आप क्या कीजिए, यू गो टू दिस वन। You go to page number 34. Are you able to see this? यस सर। Okay. दिख रहा है आपको ये? यस सर। Yeah. I hope other students are also listening. yes, Yes, sir. Yeah. तो हर बार ये यश और जिनीशा ही है। ओके, सबको दिख रहा है? और 2-3 जन यस बोलो जिसका वॉइस सिग्नेचर थोड़ा अलग Yes, होना sir. यस यस सर। सर। sir. चाहिए। इसमें ये Yes, इसके sir. पहले कौन था? प्रथमेश सर। प्रथमेश। उसके बाद? सृष्टि। हाँ, ठीक है, फाइन। ओके, सो एवरीबॉडी इज Yes, sir. ऑन पेज नंबर 34। या तो ये Yes, आपके sir. सामने जो दिख रहा है ना, राइट साइड में जो एक पैनल दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट पैनल, या वो जो है वो SMPS का पैनल है। ओके, और ये उसका सेटअप है। तो आपका जो किट है वो टॉप व्यू में ऐसा दिखता है। आर यू एबल टू सी? दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द किट। यही आपका कनेक्शन यहाँ पे होगा, राइट? को जूम करता हाँ हूँ मैं, सर। जूम करता हूँ। देखा आपने? Yes, Yes. sir. Are you able to see 5 sockets to the extreme left of the kit? Yes, sir. यस Yeah. Yes, sir. तो यहाँ पे और जूम करता हूँ। येलो, ब्लू, रेड, व्हाइट एंड
ऑरेंज देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये जो है वो अलग अलग कलर्स है. These are color codes used by SMPS manufacturers for different voltages. ओके, याद रखो कि येलो जो है +12 वोल्ट, ब्लू इज -12 वोल्ट, रेड इज +5 वोल्ट, व्हाइट इज -5 वोल्ट एंड ऑरेंज इज +3.3 वोल्ट. क्लियर? यस सर. Yes, sir. अभी आपको ये चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा जो यूट्यूब पे छोटा चैनल मैंने चालू किया है ना, उसमें SMPS आउटपुट्स नाम का एक वीडियो है. वो वीडियो Okay, के अंदर मैंने DMM को, डीसी वोल्ट मीटर को, सारे पॉइंट्स और ग्राउंड के बीच में लगा के दिखाया हुआ कि कैसा है करके. ओके, तो नो नीड टू नोट. क्लियर? और आपको नीचे दिख रहे हैं, नीचे ब्लैक कलर के सॉकेट्स दिख रहे हैं लाइन से हॉरिजॉन्टली. यस सर. Yes, sir. या वो सारे ग्राउंड हाँ, पॉइंट्स है. यो ग्राउंड पॉइंट जब भी आपको whenever you want to measure output ना, you have to put DMM between yellow and black, blue and black, red and black, white and black, and orange and black to get +12, -12, +5, -5 and +3.3 volts respectively. Is it okay? Yes, sir. Yes, या sir. यस सर. आपको ट्रांसपेरेंट शीट के नीचे एक बोर्ड दिख yes, रहा sir. है? Are you able to see a board below that transparent sheet? yes sir. अंदर है, बॉक्स के अंदर दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में? हाँ दिख रहा है. वो SMPS का PCB है. ओके, या दैट वन, राइट. और उसके ऊपर बैकग्राउंड आपको एक दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो उसका फैन है, CPU फैन बोलते हैं उसको, राइट? right, sir. हाँ, तो हमने किट को इन हाउस कैसे बनाया? हमने SMPS को ओपन किया, ओपन करना हमको बैकग्राउंड में दिखने वाला बोर्ड दिखा, उसमें ये 5 कलर के वायर्स दिखे थे हमको, और हमने उसका लेजेंड जब पढ़ा तो पता चला क्या, राइट? हमने कुछ भी नहीं किया है. We have just bought out all these 5 wires from the PCB of SMPS and we have put them here. Okay? Clear? Yes, sir. हाँ, या sir. और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? To find the load and line regulation of SMPS. Okay? yes, sir. तो अभी लोड Yes, रेगुलेशन sir. क्या होता है? चेंज इन लोड वोल्टेज पर से चेंज इन लोड करंट. तो हमने कुछ नहीं किया, Yes. हमने डिसाइड किया कि जो भी वोल्टेज का हमको लोड रेगुलेशन निकालना है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोड करेंगे. लोड करने का मतलब क्या होता है? We have to draw more and more current from the supply. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Why so? Because in electronics, when you say increase the load, it means increase the load current. Got the point? यस सर. Yeah. तो हम क्या करते हैं कि if you want to find out the load regulation of 12 volt output of SMPS, what we will do is that we will keep the mains constant. और आप देखेंगे केयरफुली, ये जो तुम्हारा SMPS का यूनिट है ना, उसको हमने डायरेक्टली मेंस को लगाया. देखा? ये देखा आपने वायर मेन सॉकेट को जा रही है? Yes, Yes, sir. sir. दिस वन. या तो लोड रेगुलेशन के लिए वी कीप द मेंस एट 230 वोल्ट एंड वी चेंज द लोड करंट. ओके, तो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव पुट 4 लैंप होल्डर्स. देखा आपने ऊपर दिख रहा है आपको बल्ब? Yes, sir. या तो ये लैंप होल्डर्स हैं, ऑल द लैंप होल्डर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, Yes, sir. या आप देखेंगे कि 2 लैंप होल्डर्स के बीच में हमने ऊपर एक रेड वायर और नीचे ब्लैक वायर. देखा आपने? तो ऑल द लैंप होल्डर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. क्लियर? Yes, sir. और उनके सारों के जो सेकंड पॉइंट्स हैं वो कनेक्ट करके हमने एक मेन ब्लैक को दिया है. इज इट क्लियर? Yes, sir. या यस सर. तो अभी इफ यू वांट टू फाइंड आउट लोड रेगुलेशन ऑफ SMPS, व्हाट आई डू इज आई मेक दिस फर्स्ट कनेक्शन. ओके, सो वन ऑफ यू प्लीज मेक द कनेक्शन बिटवीन येलो एंड व्हाइट. कोई ये करो, मेक अ कनेक्शन बिटवीन द येलो एंड व्हाइट. या तो फिर एक काम करो, मुझे यू कैन टेल मी वन ऑफ यू हाउ आई कैन ड्रॉ हियर. So check if you can directly drag and draw. नो नहीं हो रहा है. एक मिनट, मेरा तो वो पैनल ही चले गया. सर अल्ट से आता जाता है वो. हाँ, ऑल्ट से आता है क्या? इसको ये को एरेज करो. ऑल्ट से आता है क्या? नो. एनीवेज, हाँ, या यस, या ड्रॉ इट, पुल इट टू व्हाइट.
किया आपने? या ठीक है, हाँ। यस, इज एवरीबॉडी एबल टू हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so one who knows, please make a connection between yellow and white. Yeah, हो गया? So for finding load regulation of 12 volt supply, yeah, done. अभी overwrite मत करो. Okay, ये connection कर दिया आपने? Fine? Yes, sir. Yeah, so now what you will do is that while you do this, you have to put an ammeter in between. यहाँ पे ammeter लगाना. आपने देखा मैंने कुछ draw किया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ देखा आपने? यहाँ पे कुछ draw किया मैंने? Yes, sir. हाँ, एक Yes, sir. रेक्टेंगल ड्रॉ किया, राइट? या तो क्या करना पड़ेगा कि वी विल ट्राई टू ड्रॉ मोर एंड मोर करंट फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई बाय कनेक्टिंग बल्ब्स. ओके, तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल पुट एन एमीटर हियर एंड आई विल पुट वन वोल्टमीटर हियर. ओके, यहाँ पे वोल्टमीटर लगाना है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. या तो ये सारे पॉइंट्स है ना, these are all connected. Okay, ये सारा connected, these are all shorted. Okay, similarly this is also shorted. ये सारा कुछ shorted है, right? तो अभी what I will do, I will connect a voltmeter here and I will connect an ammeter here. Okay, so this will measure IL, Yes, sir. this will measure VL. फिर मैं first bulb लगा दूंगा. I'll put the first bulb here. Is it clear? Yes, Yes, sir. Yeah, so what I will do, I will put a 60 watt bulb here. और जैसे मैं 60 watt bulb, अभी देखो क्या होगा कि when I don't connect any bulb, when I don't put any bulb, it is called as no load voltage, VNL. Okay, Yes, sir. yeah, no load voltage. Yeah, so the first step is connect an ammeter here, connect a voltmeter here, and don't put any bulbs. It will give, so the voltmeter reading here will give you VNL. उसके बाद you put a bulb here. As soon as you put a bulb here, this ammeter will show a non-zero reading. Okay, तो ये होगा Yes, तुम्हारा sir. फर्स्ट रीडिंग 60 वैट्स के लिए. ओके, उसके बाद क्या देखेंगे आप कि यहाँ पे जैसे जैसे करंट ड्रॉ किया ना सप्लाई में से, तो यहाँ पे तुमको एमीटर में थोड़ा सा एक डिक्रीज दिखेगा. ओके, देन यू पुट अनदर 60 वैट बल्ब, देन यू सी दैट IL will increase, this will reduce. Put another 60 watt here, this will increase, this will reduce, and ultimately last में तो 6 तो आपको 60 नहीं 100 का लगाना है. So 100 watt, 100 watt, 100 watt and 60 watt, right? So this is 100 watt के लिए रीडिंग, ये 200 watt के लिए, 300 watt के लिए और ये 360 के लिए. Is it okay? Yes, sir. हमने 360 क्यों हाँ. बोला? बिकॉज ये जो SMPS हमने बनाया यूज किया है ना, उसका रेटिंग है 360 वैट का SMPS है, 350 वैट का है. ओके, Okay, sir. या क्लियर? सिमिलरली इफ यू वांट टू डू द लोड रेगुलेशन ऑफ 3.3 वोल्ट्स, क्या करेंगे आप? यू विल मेक दिस कनेक्शन here. Okay, so you will put an ammeter here, voltmeter here, and do the same thing. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so this is what it is. Okay, अभी इसी काम को अगर लाइन रेगुलेशन करना है, सर वो देखा आपने? ये देखो, ये है ना, आर यू देयर ऑन 35 पेज नंबर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. देखो मैंने ऑलरेडी बताया है, आई हैव ऑलरेडी शोन इट हियर. देखा? एवरीबॉडी इज एबल टू सी इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, या sir. देखा आपने? तो अभी 12 वोल्ट का लोड रेगुलेशन ले रहा हूं मैं. यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया, यहाँ पे एक एमीटर लगाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बल्ब्स ऐड किए. ओके, देखा आपने? You see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैं ये वाला चीज बोल रहा था. Are you able to see this? Yes, sir. Yeah, just see here कि ये तुम्हारे 300 वैट के SMPS का स्पेसिफिकेशन शीट है. वैसे you see here, और देखा आपने ऑरेंज? Yes, sir. या तो आप देखिए ऑरेंज का, देखो ऑरेंज का, अभी ये 300 वैट का मॉडल है ना, तो 300 देखा, इसका करंट रेटिंग देखो कितना है, 300 वैट का डिवाइस है. तो सी हियर 300 वैट, और ऑरेंज में तुमको 22 एम्पियर्स का रेटिंग है. उसी यूनिट में रेड के लिए 5 वोल्ट के लिए 30 एम्पियर्स का रेटिंग है, -5 के लिए 0.3 है, +12 के लिए 14 है, -12 के लिए 0. देखा आपने? यू सी हियर? Yes, sir. So इसीलिए मैंने बोला था कि SMPS is a very special kind of power supply
because it not only gives you multiple output voltages but also it gives you multiple current ratings also. देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. या ओके. तो अभी इसके अंदर एक ही आपको चेंज है. लाइन रेगुलेशन में आप लोग क्या करेंगे पता है? यू विल डू दिस थिंग. व्हाट वी विल डू इज, ये जो तुम्हारा वायर है ना, दिस वायर, दिस वायर, ये एसएमपीएस का वायर है. Yes, या sir. इसको आप डायरेक्टली वॉल सॉकेट में नहीं लगाएंगे. यू विल कनेक्ट दिस वायर टू द आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर. यहाँ पे लगाएंगे आप. देख रहे हो आप? Yes, sir. या Yes, sir. और ये ऑटो ट्रांसफर लगाने के बाद यू विल पुट एन एसी वोल्ट मीटर हियर. आप यहाँ पे एक एसी वोल्ट मीटर लगाएंगे ये 2 पॉइंट्स पे. थोड़ा कुछ अनम्यूट कर दो, डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yeah. So what you do is that for line regulation, you operate the SMPS unit at under voltage and over voltage. So and remember one thing, that there are 3 terms. One is called as nominal voltage, second is over voltage, and third is under voltage. Okay. So remember one thing, that 230 volt is called as nominal mains. Okay. Yes, sir. Anything Sir. above 230 is called as over voltage, and anything below 230 is called as under voltage. Okay. So हम क्या करते हैं, हम SMPS के मेंस के वायर को ऑटो ट्रांसफार्मर के वहां पे लगाते हैं. ऑटो ट्रांसफार्मर को हम वॉल सॉकेट में लगा देते हैं और यहाँ पे एक एसी वोल्ट मीटर लगाते हैं. और हम पहले ये जो नॉब है ना, डायल, ये जो डायल है उसको ऐसा सेट करते हैं कि यहाँ पे एसी वोल्ट मीटर 230 वोल्ट दिखाता है. ओके. Yes, sir. Okay. और ये 230 वोल्ट के लिए हम 12 वोल्ट्स का आउटपुट देखते हैं. ओके. So what we do is that we connect a 100 watt bulb here, as usual ammeter here and a voltmeter here. So with 12 volt, 100 watt of bulb, whatever reading we get is called as V nominal. Okay, because this is the output of 12 volt supply for 230 volt mains. Okay. Yes. Yeah, उसके बाद Yes, हम sir. क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर को 30 वोल्ट से बढ़ा देते हैं. वी टेक इट टू 260 वोल्ट्स. ओके. इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज कंडीशन. Over उस टाइम पे voltage. वापस हम वोल्ट मीटर का रीडिंग लेते हैं कि कम हुआ या ज्यादा हुआ है. ओके. तो इसको बोलते हैं वी हाई. ओके. उसके बाद वापस हम डायल यूज करते हैं और उसके ये जो तुम्हारा एसएमपीएस को जो जाता है ना, उसको हम रिड्यूस करके लेके जाते हैं कितने को, 200 वोल्ट तक लेके जाते हैं. ओके. Yes, sir. राइट. या तो Okay. 200, यहाँ पे 200 रखने के बाद हमको जो वैल्यू यहाँ पे आती है उसको बोलते हैं वी लो. ओके. Yes, sir. Yeah, so then the formula for line regulation is V high minus V low upon V nominal into 100. Nominal. Okay, is it Yes, clear? sir. Yeah. तो आपके Yes, पास sir. अगर राइट अप्स है, आपके पास एसएमपीएस का राइट अप है? Yes, sir. चेक करते. चेक नहीं करते? ठीक है, आपको मैं फ्लैश करता हूँ. आई विल फ्लैश इट हियर. वेट. रुको, आप ढूंढो मत, मैं उसका सॉफ्ट कॉपी फ्लैश करता हूँ. आपको दिख रहा है ये? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है. हाँ? या ओके. Yes, sir. इसके मैं Sir. ओबीएस टेबल में जाता हूँ. आई विल गो टू ऑब्जर्वेशन टेबल हियर. देखे आपने? देखा ये लोड, दिस इज लोड रेगुलेशन. ओके. वी नो लोड मतलब कोई भी बल्ब नहीं लगाया हमने. तो ये जो है कब करना है लोड रेगुलेशन में, वी विल कनेक्ट एसएमपीएस डायरेक्टली टू 230 वोल्ट वॉल सॉकेट में. ओके. उसमें हम एक भी बल्ब नहीं लगाएंगे, वो आएगा वी नो लोड. उसके बाद हमारा जैसे जैसे बल्ब बढ़ेगा वैसे. सो फुल लोड का मतलब पता है क्या होगा? आई विल टेल यू, जस्ट अ मिनट. फुल लोड के लिए ये वाला. ओके. आपको दिख रहा है ये? आपको दिख रहा है पीडीएफ? हाँ, आगे अभी. Hello.
Hello. Yeah. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah. Yes. Okay, okay. Abhi was last 5 minutes. I'm sharing something. Yeah, share screen. Okay, sir. Yeah. Yes, sir. हो रहा है शेयर? अभी आ गया आपके पास? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ Yes. सर. अभी देखो, अभी यहाँ पे नहीं सब यस बोलने जरूरत नहीं, मुझे पता आ गया सब. ओके. सी जब मैं कोई भी बल्ब नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, दैट इज, और उस टाइम पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वोल्ट मीटर में, दैट इज कॉल्ड एज वी नो लोड. ओके, फाइन. Yes, sir. हाँ, उसके बाद आई विल पुट 100 वैट प्लस 100 वैट प्लस 100 प्लस 60. जब मैं चारों बल्ब लगा दूंगा उस टाइम पे मेरा जो वैल्यू आएगा ना वी लोड का, उसको बोलेंगे वी एफ एल. ओके, राइट. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला? Yes, sir. या या तो यहाँ पे वी नो लोड इज द वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर with none of the bulbs connected. VFL is the value of voltmeter with all bulbs connected. Okay, आते हैं लाइन रेगुलेशन पे. V high minus V low upon V nominal into 100. Okay, अभी देखो इसका OBS टेबल देखो, लाइन रेगुलेशन देखा आपने. यहाँ पे लोड रेगुलेशन में लोड करंट, लोड वोल्टेज जीरो, कोई भी बल्ब नहीं लगाया, करंट जीरो आएगा. यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी से 11.95. उसका जैसे जैसे आप बल्ब लगाएंगे ये कॉलम में तुम्हारे करंट बढ़ते जाएगा, और जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ये जो कॉलम में वोल्टेज है वो कम होते जाएगा. ओके, डिक्रीज हो, उससे निकालेंगे. ओके, एंड यू कैन रिपीट दिस फॉर ऑल द वोल्टेजेस. ठीक है. Yes. लाइन रेगुलेशन देखेंगे आप. लाइन रेगुलेशन में 100 वैट मतलब क्या करेंगे आप कि आप एक बल्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट को आप रखेंगे 230, वो आएगा वी नॉमिनल. ओके, सपोज 12 वोल्ट है, राइट. तो सपोज होगा कि 230 के लिए अगर आउटपुट आया 12 वोल्ट का 11.95, तो लिखेंगे 11.95. फिर मैं वी हाई के लिए मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट 260 कर दूंगा. फिर अकॉर्डिंगली मैं वोल्ट मीटर की वैल्यू नोट करूंगा. उसके बाद वी लो के लिए मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट करूंगा 200 वोल्ट, वोल्ट मीटर नोट करूंगा. गॉट द पॉइंट. तो कैसा आएगा फॉर्मूला इसका? इट विल कम दिस minus this upon this into 100. V normal. What the Yes, point? sir. या उसी तरह आप रिपीट sir. करेंगे हर एक चीज के लिए. क्लियर? Yes, sir. एंड आपने Yes, ग्राफ sir. बनाना है. ओके, ठीक है, Yes, फाइन. sir. या अभी लास्ट है, आपको मैं वीडियो फ्लैश कर जो मैंने YouTube पे मैंने अपलोड किया ना, वही मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. दिख रहा है आपको? Yes, sir. आपको वीडियो दिख रहा है? एक VLC प्लेयर दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, अभी देखो. Yes, sir. ये देखो मैंने कैसे किया है. ओके, जस्ट सी दिस वीडियो. ये मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट किया. ओके, देखो ये आप देख रहे हो, यू आर एबल टू सी दिस. Yes. या अभी देखा मैंने, हमने ना हार्ड वायर किया है. मतलब क्या किया हमने, SMPS यूनिट का जो वायर है ना 3 पिन. आर एबल टू हियर मी? Hello. Connection है. आर एबल टू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. या तो SMPS का जो मेंस का वायर है 3 पिन वाला, उसका हमने अर्थ का पिन तोड़ दिया है. तो उसके जो 2 पिन्स है ना, 2 वायर्स हैं SMPS के यूनिट के, वो हमने यहाँ पे लगा दी. वी हैव कनेक्टेड इट हियर ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे. ओके, Okay, sir. हाँ. तो लोड रेगुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर को 230 पे सेट कर देते हैं, उसको फिर हिलाते नहीं है, और फिर बल्ब्स ऐड करते आते हैं लोड रेगुलेशन के लिए. ओके, Okay, sir. हाँ. इसका मतलब क्या है कि हमने यूनिट ऐसे किया क्योंकि क्या होता है फिर बार बार हमको निकालनी पड़ती है वायर. ओके, ठीक है. तो आई हैव कनेक्टेड द DMM एज अ DC वोल्ट मीटर. ओके, Okay, sir. या ये तुम्हारा ग्राउंड पॉइंट हो गया जो कॉमन है. सी हाउ मच इट इज गिविंग. कितना है?
कितना आ रहा है आउटपुट अभी? 8 minutes. Able to hear me? Yes sir, लेकिन Yes, वीडियो sir. में Yeah. तो ये वीडियो yellow क्लियर is नहीं क्या? दिख रहा This is सर। plus 12 volts. Okay. yes 12.14 yes sir. या तो 12 होना चाहिए, Yes, राइट? sir. सेकंड ब्लू इज -12, कितना आ रहा है? -11.5। -11 5 point yes sir. या थर्ड इज +5 वोल्ट्स, आ रहा है 5.2। या एक्यूरेट आ रहा है। No. या जस्ट अ मिनट, कर रहा हूँ, फ्लैश कर रहा हूँ। या अभी आ रहा है वापस? Yes sir. या ओ समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, so yellow is +12, blue is -12। Yes sir. -5, 3.3। Let's say it should be 3.3, it is 3.4। okay, Yes sir. yeah, Yes, sir. okay, so how to show grid? फाइन। सो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। उसे कहते वो जबरदस्ती नहीं, हम नहीं गए क्योंकि हम ऐसे नहीं है। राजा के नाम है सत्येंद्र। रिजल्ट आगे दोबारा से करने को समझ नहीं आता क्या करें। आप तुम्हारे लिए कहते थे कि कभी हमें नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? What's going on? या सो हमारे आज की क्लास खत्म हो गई है। तो वी स्टार्टेड एट व्हाट टाइम अप्रोक्सीमेटली? यश हेलो तेजस, डिस्टर्बेंस आ रहा है। छोड़कर चले गए। चालू है क्या? 12 बजे चालू किया अरे है। हाँ। तेजस माइक म्यूट कर दो। ओके, सो जिनीशा, यश, तुषार, तेजस, अग्निजीत, प्रणव, सृष्टि, प्रथमेश, ऐश्वर्या, सागर, राइट? आज का सेशन लंबा चला बिकॉज बहुत बार डिस्कनेक्ट हो गया। फाइन। Yes sir. वही। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन बोर्ड एंड होप दैट यू विल स्टार्ट स्टडीइंग। आपने पढ़ाई चालू किया या फिर सिर्फ असाइनमेंट ही खत्म कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं सर, असाइनमेंट से कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पन्ना में सकाल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस दिया है, आपको पता है एग्जाम के बारे में? हाँ सर। तो within 10 10 दिन days. का 10 कुछ days। हाँ, तो लॉकडाउन खत्म होने के 10 डेज में वो एग्जाम लेंगे। Yes तो sir. उन्होंने क्लियरली बोला है कि एग्जाम तो बिल्कुल कैंसिल नहीं होने वाली है। एग्जाम के फॉर्मेट का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन एग्जाम होगा।
और उन्होंने बोला है कि लॉकडाउन के बाद जो 10 दिन है वो देने वाले हैं सबमिशन खत्म करने के लिए। ओके, तो Okay, आपको sir. अभी थोड़ा अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अभी अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के अप्रोक्सीमेटली नोट्स मिल गए हैं तो आप प्लीज पढ़ाई करना शुरू करो, बिकॉज आज कितना तारीख है, 4 तारीख हो गया, राइट? तो 10 दिन Yes, के sir. बाद अगर लॉकडाउन अगर हो जाता है क्लियर, तो आपके पास आपके 10 दिन तो पूरे सबमिशन में ही जाने वाले, बराबर ना? Yes, Yes, sir. sir. या देखो ना, पावर का तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फाइल भी चेक नहीं हुआ है। उसके बाद मतलब आपको SMPS फटाफट परफॉर्म करके, रीडिंग्स करके, ग्राफ्स बना के, फिर वो CO3 CO4 का असाइनमेंट लगा के, क्रॉसवर्ड पजल लगा के सब करना पड़ेगा ना। तो आप अभी से पढ़ाई चालू कर दो, इट इज एडवाइजेबल, है ना? Yes, sir. यस सर। या और एक चीज बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों ने क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया? बोल रहे हैं सर, हाँ? उसका print तो नहीं मिला है बट आंसर ढूंढ रहे हैं अभी। क्या बोल रहे हैं चंदन? सर वो अभी प्रिंट आउट तो नहीं ले पा रहे हैं बट आंसर्स ऑलमोस्ट कर रहे हैं। हाँ बराबर, प्रिंट आउट नहीं पॉसिबल होगा ना। ओके, सर अभी शॉप्स क्लोज्ड है सो कुछ कर नहीं पा रहे उसके बारे में। अच्छा देखो, एक हो सकता है, आई कैन डू वन थिंग, वो जो तुमको PDF भेजा है ना जिसके अंदर क्रॉसवर्ड है और नीचे क्वेश्चन है अक्रॉस और डाउन वाले ना, तो व्हाट आई sir. विल डू इज दैट आई विल ट्राई टू मेक दैट क्रॉसवर्ड इन वर्ड या इन एक्सेल में बना देता हूँ, ठीक है ना? हाँ सर वो भी चलेगा। हाँ, तो क्या करूंगा मैं, उसी क्रॉसवर्ड को अगर एक्सेल या वर्ड में बना देता हूँ तो फिर लोग स्टूडेंट्स है ना उसको एडिट कर सकते हैं ना। Edit. Yes, sir. हाँ सर। Yes, हाँ, वो ठीक है, तो फिर एक्सेल या वर्ड बना देता हूँ मैं उसका और आपको भेज, तो आप फिर फिल कर सकते हो। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। ओके हाँ सर वो हो जाएगा। ओके, चलो बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक मिनट, Bye, sir. जिनिशा यू डोंट लीव, यू रिमेन। Yes, sir. या Okay, sir. बाकी सब मूव कर सकते हैं, मतलब यू कैन लीव इट। Okay, sir. Thank you, sir. या वेलकम। Thank you, sir. सर हाँ, सर ये जो UT2 का पेपर था वो आपको मेल करना है? बाकी के टीचर्स क्या कर रहे हैं? So some teachers told us to submit the hard copy when the college starts. देखो हमारे HOD के साथ, HOD का TE के CCs के साथ मीटिंग हुआ था 4 दिन पहले। उसमें हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि स्टूडेंट हाथ से लिख के उसको स्कैन करके भेजे। तो HOD सर का कहना ऐसा था कि डेटा कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्कैन करने के बाद अगर आपको नेट स्पीड नहीं मिली ना तो फिर वो अपलोड भी नहीं होगा हमारे मेल बॉक्सेस में। हाँ सर वो भी एक इशू है। Right, sir. हाँ, तो तभी तो सर ने बोला था कि जब भी रिज्वाइन हो जाएंगे ना, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो रिज्वाइनिंग कब आएगा पता नहीं है, तो आप क्या करो ना, सारा कुछ जो क्रॉसवर्ड क्विज असाइनमेंट जो है ना सब खत्म करके रख दो और पढ़ाई चालू कर दो, ताकि जब आप आएंगे तो सिर्फ हमको सबमिट करना पड़े। व्हाट द पॉइंट ना? यस Yes, सर। sir. और Yes, हम sir. भी क्या करेंगे ना, क्योंकि देखो कैसा है कि नॉर्मल केस में हम सॉल्यूशन बोलते तो स्टूडेंट क्या करता है, ये लोकल ऑथर, वो लोकल ऑथर, ये उधर से करके आता है तो इनकम्प्लीट होता है ना। अभी जो भी हाँ स्टूडेंट्स UT2 का पेपर सॉल्व या असाइनमेंट सॉल्व करके लेके आएंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन आवर नोट्स ना। यस सर। Yes, sir. या Yes, sir. इसलिए द सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस इज द नोट्स व्हिच वी हैव सप्लाइड, वी डोंट हैव टू क्रॉस चेक ओनली। आप स्टूडेंट आएगा बोलेगा सर UT2 का पेपर, ये क्रॉसवर्ड पजल है, ये क्विज है और ये असाइनमेंट है, तो हम सिर्फ लेंगे, नोट करेंगे, साइन लेके बाहर भेज देंगे। व्हाट द पॉइंट ना? यस Yes, Yes, sir. या इसलिए आप क्या करो, हाँ, तो दिए हुए नोट्स में से ही UT2 का सॉल्यूशन निकालो तो बहुत आसान हो जाए हमारे लिए, कोई भी इनकम्प्लीटनेस नहीं होगी उसके अंदर। ओके, okay, sir. ठीक है। Thank you, sir. या Thank you, जिनीशा, Yes, sir. हाँ तुम रहो, तुमसे बात करना है। Yes, sir. या ओके, जिनीशा, हाँ, sir. हाँ, आई वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द सेशन टुडे। आज Yes, sir. जब भी हम कनेक्ट हुए सब, तो वॉइस का क्लैरिटी था क्या? हाँ सर, बहुत सर, इनफैक्ट काफी परफेक्ट था वॉइस का क्वालिटी। ओके, दूसरा चीज कि मेरा जो साउंड था, वाज इट टू लाउड और टू माइल्ड? बिकॉज मुझे मेरे स्क्रीन के माइक्रोफोन से डिस्टेंस का अंदाज नहीं है।
Right, so I can understand that. लेकिन आपका voice perfectly सुनाई दे रहा था. So the loudness was proper. Okay, what was proper? Okay. Second thing, was I And too? sir, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो screen होता है ना, वो lag भी करता है. लेकिन आपके session में ऐसा भी नहीं हुआ sir. वो दिख रहा था properly. Okay. So the thing is that, was there a lag between the scrolling of pages and my explanation relevant to that page? नहीं सर, वो starting में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. लास्ट में when you came to the revision ना, तब 1-2 सेकंड का lag हुआ, लेकिन that was like understandable. Okay. Was I too fast or too slow in the explanation? नहीं सर, I think perfect था, because understanding like आप एक बार पढ़ के उसके बाद समझा रहे थे तो समझ में आ रहा था सब कुछ. Okay. Fifth thing is that, is this the way you want the other remaining sessions to be conducted? या फिर you want Yes sir, because you want less सर ये perfect है. हाँ? Because ये बार actually समझ में आया सब कुछ, because बाकी सब में जब होता है ना तब, because people are so fast, teachers are fast, so समझ में नहीं आता है. लेकिन the way you taught, we understood everything. Understood. Yeah. तो स्पीड इज ओके ना, वही. क्योंकि कैसा है कि अभी तो ऐसा है कि नोट्स 2 दिन पहले आए हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इट इज हार्डली पॉसिबल दैट स्टूडेंट को पता भी होगा कि सर आज एसी वोल्टेज कंट्रोल डिस्कस करने वाले. तो हार्डली कोई होगा कि जिसने नोट्स पहले से पढ़ के रखे एंड देन ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड बाय हिमसेल्फ. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. Exactly sir. राइट ना? या तो ऐसा बोलना कि भाई आज ज्यादा समझ में आ रहा था, वो थोड़ा इररिलेवेंट सा लगेगा किसी स्टूडेंट की तरफ से. हाँ. या ओके, तो ये तरीका So ठीक है. actually बाकी सब टीचर्स यू नो ऐसे वो हो जाता है कि you have to complete it fast, तो वो जल्दी भगाकर फिर समझ में नहीं आता है. But then this was the perfect speed. So the thing is that there was almost a synchronism between the page which was trying to explain and my narration. Second thing, I was loud enough, I was clear enough, I was neither too fast nor too slow. There were slight lags in that. और दूसरा चीज है कि क्या पूछ रहा था मैं कि दिस इज ओके राइट, इन द सेंस एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करो या फिर नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. सर करेक्ट है सर, एक्सप्लेनेशन सब परफेक्ट है. तो आज तो सर लंबा हो गया सेशन, बट अदरवाइज लाइक टॉपिक्स कम होगी तो कम हो जाएगा. हाँ. दूसरा चीज कैसा है ना कि अगली बार आज तो क्या था ना कि जूम डिस्कनेक्ट काफी टाइम हुआ है, तो जूम डिस्कनेक्शन में मुझे लगता है हमारे जूम डिस्कनेक्शन में 10 मिनट गए होंगे शायद. हाँ सर, एंड द बिकॉज यू डिस्कनेक्टेड एंड यू जॉइंड अगेन, तो वो 40 मिनट्स का थिंग भी एक्सटेंड हो गया. हाँ वो बराबर राइट. एनीवेज ओके ठीक है, तो आगे वाले सेशंस में 40 मिनट्स में ही कंप्लीट करने ट्राई करूंगा. दूसरा चीज ऐसा है कि वी लॉस्ट टाइम इन रिकनेक्टिंग एंड वी विल स्टार्ट इन टाइम नाउ, इन द सेंस ना आगे 25-30 लोग आगे तो हम स्टार्ट कर देंगे. एंड तो देयर वाज सम, मैं थोड़ा बिजी जैसा था तो मैं 11 बजे आ नहीं पाया. कल हम 11 बजे शार्प शुरू कर देंगे. ओके तो एक मैक्सिमम 12:15 से खत्म है, तो क्या लोगों का लंच टाइम भी मिस नहीं होगा. एंड आई नो दैट यू हैव टू कुक. हाँ सर. Yeah sir. Okay, sorry for the inconvenience, but then we'll be in time from Monday. Okay. Okay sir. Yeah, bye, thank you. Bye sir. Yeah.